Assalamu alaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. As you know, we were discussing the enzyme lesson. As I said that enzymes are very specific in their action. Enzymes अपने action में बहुत ही हसास होते हैं. A little bit temperature here and there, pH here and there, or substrate concentration इधर उधर हो जाए, it will badly affect the reaction of enzyme. ये enzyme के action पर बहुत ही असरअंदाज होते हैं. Today we will discuss those factors which affect the reaction of enzyme. आज हमारा टॉपिक ये है कि हम लोग वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो एंजाइम्स के एक्शन पर बहुत ही असरअंदाज होते हैं. नंबर 1, एंजाइम कंसंट्रेशन. ओके, व्हाट इज दिस? द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन. कोई भी केमिकल रिएक्शन व्हिच इज हैपनिंग इन आवर बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन. इट मींस कि अगर एंजाइम की मिकदार या the concentration of enzyme will increase, the rate of chemical reaction will be sped up in our body. हमारे बॉडी का जो भी केमिकल रिएक्शन है, एंजाइम की रफ्तार, अगर एंजाइम की तादाद यहाँ पर बढ़ेगी, उसकी मिकदार बढ़ेंगी, तो उसकी रफ्तार भी बढ़ेंगी. These two reactions are directly proportional to one another. What directly proportional means? That when one quantity increase, the other quantity will also increase with it. अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी, दूसरी क्वांटिटी भी उसी के साथ increase करेंगे. This is called directly proportional. So enzyme is directly proportional to so the rate of reaction of our chemical body is directly proportional to the enzyme concentration. जैसे ही enzyme की मिकदार बढ़ेगी, हमारे बॉडी का chemical reaction will also increase. The number 2 factor is substrate concentration. What was substrate? Substrate वो चीज था जो enzyme के साथ बाइंड करता है, यानी एनीथिंग विच द मॉलिक्यूल और केमिकल विच बाइंड्स विद एंजाइम, जो एंजाइम के साथ अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट. अब यहाँ पर क्या है? द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ एंजाइम इंक्रीज एट अ सर्टेन लिमिट. जैसे हम लोग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, एंजाइम का रिएक्शन भी उसी के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा. एंड फिलहाल टिल अ टाइम दे आर directly proportional to one another, but for a certain limit, लेकिन एक खास हद तक. After a time when the substrate will increase but the rate of reaction will be stopped. लेकिन उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि whenever we will increase the substrate but the rate of reaction will be stopped. उसके बाद एक ऐसा वक्त आएगा कि हम लोग substrate की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, लेकिन the rate of reaction will not speed up. rate of reaction आगे नहीं बढ़ेगा. वजह क्या है? Because the active side is occupied. एक्टिव साइड या वो जगह जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, मैंने बताया था, आई हैड टोल्ड इन माय लास्ट लेक्चर दैट द साइट वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स विद एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एक्टिव साइट. वो जगह जहाँ पर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिलता है उसको बोलते हैं एक्टिव साइट. तो जब हम लोग इंक्रीज ऑफ रिएक्शन, सबस्ट्रेट की मिकदार को जितना हम लोग बढ़ाएंगे, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा. वो जगह है कि जहाँ पर सबस्ट्रेट ने अटैच होना है, दैट प्लेस इज ऑक्यूपाइड, वो जगह भर गई, अभी वहां पर कोई भी खाली जगह नहीं है. दैट वाज द सेकंड फैक्टर. नाउ वी कम टू द थर्ड फैक्टर, रेट ऑफ टेम्परेचर, दर्जा हरारत, हीट. यस, एंजाइम्स आल्सो अफेक्ट enzymes are also affected by the increase or decrease of temperature. When the rate of chemical reaction increases in the rise of temperature, it is also same just like the substrate concentration. Rate of temperature और enzyme की जो आपस में relation है, बिल्कुल ये भी substrate की तरह है. जैसे हम लोग temperature यानी heat को बढ़ाएंगे, the enzymes will, the rate of enzyme the rate of chemical reaction will also increase, लेकिन up to a certain limit. Dear listeners, we all know that what is the normal body temperature? 37 degrees centigrade. That is the normal body temperature. हमारे body के जो cells है, they work within this range. Our body cells work within this range, so it means that even if the temperature fluctuates, अगर ये ऊपर नीचे होगा, so our cells will not work properly. The same case is with enzyme. बिल्कुल same case enzyme है. यहाँ पर you can see here, dear viewers, आप देख सकते हैं कि the graph is going up. Whenever the graph reaches in the range of 40 to 37, you can see, यहाँ पर जब पहुंच जाती है, you can see a dip in the graph. ग्राफ बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं. Why? Because इसका एक optimum temperature. Optimum means एक हद, एक लिमिट होती है हमारे बॉडी के एक टेम्परेचर की. Because enzymes will increase within this temperature. हमारे बॉडी के जो enzymes है वो इसी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड में ही इंक्रीज करेंगे या वो ही फंक्शन करेंगे प्रॉपरली. अगर हम लोग टेम्परेचर को और भी बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल ये 37 से ऊपर हो जाए, 40, अबव 45, फॉर एग्जांपल 50 एंड मोर ऑन सो
एंजाइम्स क्या हो सकते हैं? दे बिकम डीनेचर. व्हाट इज डीनेचर? What is denaturation? It's the process in which enzymes lose their globular structure. मैंने पहले ही बताया था मेरे लास्ट लेक्चर में when we were describing the characteristics of enzymes. The shape of enzyme is just like a globe. So whenever enzymes की हमारी बॉडी की टेम्परेचर 37 से इंक्रीज हो जाए, so what happens? Enzymes become denatured. वो अपने इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को बिल्कुल उनका बिखर जाता है, it is destroyed, जिसकी वजह से the enzyme, the activity of enzyme will be blocked या बिल्कुल रुक जाती है और डिक्रीज रैपिडली या बिल्कुल एकदम से आहिस्ता गिर जाती है नीचे. यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्राफ बिल्कुल यहाँ पर जा रहा था, एकदम से ग्राफ नीचे की तरफ आए. व्हाई? बिकॉज टेम्परेचर 37 से ऊपर हो गए और एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल यहाँ पर रुक गई. ओके, टी रिवर्स हमारा जो लास्ट वन है फैक्टर, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ पीएच. आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज पीएच. डियर लिसनर्स, आप लोगों ने केमिस्ट्री क्लास जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पीएच इज अ ग्राफ, एक टेबल है. ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 till 14. 0 से इसकी शुरुआत होती है और ये 14 पर खत्म हो जाती है. पीएच इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ एंजाइम्स. हर एंजाइम के लिए एज आई सेड दैट टेम्परेचर जरूरी है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट. द सेम केस इज विथ पीएच. पीएच भी एंजाइम की प्रॉपर एक्टिविटी के लिए उतना ही जरूरी है जैसे कि बाकी सारे फैक्टर्स हैं. लेकिन बट दे वर्क एट अ नैरो रेंज. वो बिल्कुल अपने ही पीएच के लिमिट के मुताबिक ही प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं. अब ईच एंजाइम हैज अ डिफरेंट पीएच. हर एंजाइम का पीएच अलग है. पहले मैं बताता हूँ कि व्हाट इज पीएच. पीएच का मतलब क्या है? द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल या OH आयन. जब भी हम लोग किसी भी केमिकल एसिड और बेसिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं, इफ अ कंपाउंड गिव्स अस H+ आयन, दैट इज एसिड. केमिस्ट्री के मुताबिक मैं बता रहा हूँ. ओके, अगर किसी चीज को हम लोग पानी में मिला देते और वो हल हो जाए और वो हमें H+ आयन दे दे, दैट इज कॉल्ड एसिड यानी तेजाब. और अगर हम किसी भी चीज को पानी में मिलाएं और वो हमें OH आयन दे दे माइनस नेगेटिव, दैट इज देन उसको बोलते हैं एल्किलाइन या बेस. हम लोग कहते हैं. ओके, सो इस टेबल में हमें ये बताता है कि विच कंपाउंड्स आर बेसिक एंड विच कंपाउंड्स आर एसिडिक. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 till 6. फ्रॉम 0 to 6 दिस रेंज एसिडिक. 0 से लेकर 6 तक ये जो रेंज ये तेजाबी रेंज है. दरमियान में 7 आता है. 7 इज न्यूट्रल. ना 7 जो है ना इधर एसिडिक है नोर ही ये बेसिक, ना ही वो तेजाबी मरहले में आता है ना ही वो बेसिक या हसास मरहले में. 7 जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाटर है. वाटर एक ऐसा चीज है जिसमें ना एसिडिक नेचर है और ना ही बेसिक नेचर, दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल. आफ्टर 7 8 के बाद फिर क्या शुरू होता है? बेसिक नेचर एंड इट गोज ऑन टिल 14. अब डियर व्यूअर्स, यहाँ पर मैं बताऊं कि द मोस्ट वीकेस्ट एसिड विल प्रेजेंट टिल हियर. यानी जैसे हम लोग इस पीएच को कम करते जाएंगे, व्हेनेवर इट विल मूव टिल 0 या 2 1, द एसिड्स विल बिकम स्ट्रॉन्गर. यहाँ पर तेजाब और भी ताकतवर होते जाएंगे. यानी जैसे हम लोग कम वैल्यू की तरफ जाएंगे, द एसिड विल बिकम स्ट्रॉन्गर. और ये यहाँ पर कौन से होंगे? वीक एसिड्स. यहाँ पर फिर क्या है? यहाँ पर 8 9 10 जैसे हम लोग लेस से शुरू करेंगे, द बेसिक विल बी वीक, सॉरी बेस विल बी वीक. बट व्हेनेवर वी इंक्रीज, जैसे हम लोग इस टेबल के लास्ट तक जाएंगे, दे विल बिकम स्ट्रॉन्ग बेसिस. यानी यहाँ पर बेसिस क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. सो जैसे मैंने कहा था कि हर एंजाइम अपने ही पीएच के मुताबिक ऐड करता है. यहाँ पर हमने 2 एंजाइम दिए. वन एंजाइम इज पेप्सिन. ये वेयर इज इट प्रेजेंट? इन आवर स्टमक. ये हमारे मैदे में ही मौजूद होता है. इसका काम क्या है? ये हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. अब सबको मालूम है कि इन आवर स्टमक देयर इज अ गैस एसिड दैट इज कॉल्ड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये हमारे मैदे में मौजूद होता है विच डाइजेस्ट आवर फूड. अब यहाँ पर पेप्सिन इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक. तो हमारा पेप्सिन किस नेचर का हो गया? एसिडिक. उसका पीएच कौन सा है? 2. इट्स पीएच यहाँ पर मैं लिखूँ कि द पीएच ऑफ पेप्सिन इज 2. ओके, यहाँ पर देखो ये इस रेंज में आ रहा है, एसिडिक रेंज. ओके, नेक्स्ट वन एंजाइम इज ट्रिप्सिन. ये भी प्रोटीन को ही, इट आल्सो एक्ट्स ऑन प्रोटीन. ये भी प्रोटीन में ही काम करता है, लेकिन ये मैदे में मौजूद नहीं है. ये कहाँ पर मौजूद है? इट इज प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन. ये हमारे आंतों में ही मौजूद होता है. एंड द नेचर ऑफ आवर इंटेस्टाइन इज नॉट एसिडिक, इट इज बेसिक. तो इसका रेंज कहाँ पर आएगा? ट्रिप्सिन विल कम हियर इन द 8 रेंज. देखिए आप दिस. सो इसी तरह डियर व्यूअर्स, पेप्सिन
pH रेंज 2 में ही आएगा एंड ट्रिप्सिन विल बी। इसी तरह देयर आर मेनी बेसिस डियर व्यूअर्स, एसिड्स हो गए या फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स है जिसका पीएच जो अपने पीएच के बिल्कुल दे एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर पीएच या नैरो रेंज ऑफ पीएच। पीएच थोड़ा इधर उधर हो जाए देन देयर फंक्शन विल नॉट बी सूटेबल, ओके, या वो अपने फंक्शन को प्रॉपरली अंजाम नहीं दे सकते हैं। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। 4 फैक्टर्स आर देयर। मैंने सबको इजी लैंग्वेज में विद डायग्राम विद इजी एक्सप्लेनेशन मैंने इसको एक्सप्लेन करा दिया। फिर भी इफ यू हैव एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, यू कैन राइट इन माय कमेंट सेक्शन। एज आई सेड, माय कमेंट सेक्शन इज ओपन 24/7 फॉर यू गाइस, ओके। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, माय वीडियोस। उनको लाइक करें, उनको शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ये हर वीडियो whenever the video which we make takes a lot of hard work, a lot of passion, a lot of commitment. So please support us till we meet next time. Goodbye.